ओके, सो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है. लेट मी स्टार्ट. लास्ट लेक्चर में हम क्विक सॉर्ट के एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे. वो इंटरनेट की खराबी की वजह से कंप्लीट नहीं हो सका. सो आई विल कंटिन्यू अगेन. Basically, if you see this is constant, and t of n is basically t of k plus t of n minus k minus 1, n minus k and then minus 1 plus c2n. Is this okay? This recurrence relation is okay? Is this okay? Here k is the size of left array, so we have two arrays. After partitioning, we may end up our pivot here. That's our pivot, and this is the size of left subarray. This is the left array, and the right array has size like n minus k minus 1, and because one element is here as a pivot, depending upon के left array का size कितना होगा और right array का size कितना होगा, we do not know the exact value of k, because pivot जब हम choose करेंगे वो pivot की value क्या होगी array के अंदर, उस value से छोटी values कितनी हैं, उस value से बड़ी values कितनी हैं, we do not know. Okay? जी सर. So अगर हम मिसाल के तौर पे बैलेंस पार्टीशनिंग की बात करें, बैलेंस पार्टीशनिंग यानी if k is equal to n over 2, let's say, then this recurrence becomes t of n over 2 plus t of n over 2 minus 1 plus c2n, which actually is very similar to the recurrence of merge sort. And in this case, T of n is simply theta n log n. Yes? जी सर. But we do not know. I mean, this is the case when we select a pivot that actually stays at the center of the array. We can have another option also. For example, maybe we select a pivot and it actually happens to be this, k is equal to n over 3. In that case, our recurrence is t of n roughly equal to t of n over 3 plus t of n over basically 2n over 3 plus c2n. ये मैंने रफली इसलिए लिखा है कि ये यहाँ पे -1 आना था, वो मैंने नहीं लिखा. अगर मैं -1 लिख दूँ तो एग्जैक्टली इक्वल. और इसको भी अगर आप करके देखें तो दैट इज, अगर आप ये मास्टर मेथड से तो नहीं होगा, अगर इसको आप रिकरियन ट्री से करें दैट बिकम्स n log n. ओके, यस. यस सर. इसके अलावा अगर आप मिसाल के तौर पे k को अज्यूम कर लें, लेट्स से n over maybe 100
then the recurrence will be roughly equal to again t of n over 100 plus t of 99n over 100 plus c2n, and that again is n log n. मैंने k की वैल्यूज बड़ी केयरफुली चूज की हैं ताकि हर दफा ही रिजल्ट जो है वो n log n आए, but this is not always the case. If, for example, if the value of k is, let's say 1 or 0, the left array is completely empty. If the value of k is, for example, 0, then t of n is t of 0, which is constant, plus t of n minus 1 plus c2n, and that leads to theta n square. And this is not only when this k is, this is not only true, this is not true only when k is equal to 0. If you, for example, have the value of k, if the value of k is any constant, it may be 10, it may be 100, it may be 1,000, a million, a billion, or whatever. As long as it is a constant, the result will be n square. So, अगर तो आप बड़ी बैलेंस पार्टीशनिंग के बारे में सोचें तो जो रनिंग टाइम है वो n log n से नीचे तो नहीं जाएगा, n log n से नीचे नहीं जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि आप n स्क्वायर में भी चले जाएं. इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द पिवट. जो आपने पिवट सेलेक्ट किया था उसकी वैल्यू क्या थी, कितनी वैल्यूज उससे छोटी हैं, कितनी वैल्यूज उससे बड़ी हैं. Completely depends upon that, which is not in your control. Yes? Yes, sir. तो ऐसी सिचुएशंस जहां पे एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हों, यानी रनिंग टाइम ये भी आ सकता है, रनिंग टाइम ये भी आ सकता है, रनिंग टाइम ये भी आ सकता है, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हों, यानी k की वैल्यू अगर 0 है तो रनिंग टाइम कुछ होगा, k की वैल्यू 1 होगी तो रनिंग टाइम कुछ होगा, k की वैल्यू 2 होगी तो रनिंग टाइम कुछ होगा, एंड सो ऑन. जब रनिंग टाइम मुख्तलिफ तरह के आने के चांसेस हों, प्रोबेबिलिटी हो कि ये भी रनिंग टाइम हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो फिर बेहतर होता है कि आप एवरेज केस या एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम निकालें. ऑन एवरेज क्या होगा अगर मैं ये क्विक सॉर्ट को बार बार रन करूं, लेट्स से 1,00,000 दफा, और 1,00,000 दफा का जो रनिंग टाइम्स हम सबकी एवरेज ले लूं, तो ऑन एवरेज व्हाट विल बी द रिजल्ट. ठीक है. सो इस तरह के सिनेरियोज जहां पे मल्टीपल किस्म की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एक एल्गोरिथम की, और वो मल्टीपल किस्म की पॉसिबिलिटीज रैंडम होती हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होती, वहां पे आप एवरेज केस एनालिसिस के बारे में बात करते हैं. ओके. यस. जी सर. और यहाँ पे जो एवरेज केस रनिंग टाइम है उसको एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम भी कहते हैं. तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करने की कोशिश करता हूँ. आप जरा गौर से देखिएगा कि t of n can fall into one of these possibilities. It can be t of 0, the left array is empty, t of n minus 1 plus n. ये obviously थीटा n है, लेकिन मैं फिलहाल कांस्टेंट को इग्नोर कर रहा हूँ. चलिए लिख देते हैं कोई भी कांस्टेंट, आई मीन थीटा n, c2n, or it can be t of 1, t of n minus 2 plus c2n, or it can be 2 plus t of n minus 3 plus c3n, down to, अगर मैं नीचे से देखूं, it can be t of n minus 1 plus t of 0 plus c2n, or it can be t of n minus 2 plus t of 1 plus c2n, or it can be t of n minus 3 plus t of 2 plus c2n. And these are, I mean, there are several possibilities. All these are the possibilities. लेफ्ट अरे का साइज जो है वो 0 होगा, राइट अरे जो है वो n-1 एलिमेंट्स की होगी, या लेफ्ट अरे का साइज 1 होगा, राइट अरे जो है वो n-2 एलिमेंट्स की होगी, एंड सो ऑन. These are so many possibilities. Each possibility has a chance, depending upon के जो आपने वैल्यू उठाई है
पिवट की, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, फोर्थ स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, एंड सो ऑन. यस. जी सर. जी सर. So these are total n possibilities. If you see, these are total n possibilities. और अगर मैं हर पॉसिबिलिटी को इक्वली प्रोबेबल कहूँ, यानी हर पॉसिबिलिटी के चांस, कोई एक पॉसिबिलिटी किसी दूसरी पॉसिबिलिटी से ज्यादा उसके चांसेस नहीं है, सब पे इक्वल चांसेस हैं, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या इक्वल प्रोबेबिलिटी हर एक यानी की. तो जो एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम है या जो एवरेज रनिंग टाइम है उसको हम निकाल सकते हैं. ये एवरेज रनिंग टाइम मैं लिख रहा हूँ. दैट कैन बी रिटन एज 1/n. I varies from 0 to, or you can write it as k or I or whatever, n minus 1 t of I plus t of n minus I minus 1 plus n. आप यहाँ पे कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, but I'm just keeping the thing simple. That's the average running time equation. ये on average क्या इसका रिजल्ट आएगा? Take some time and convince yourself this is the case. Yes? आप देख रहे हैं स्क्रीन? जी सर. So take some time and मैंने सारी पॉसिबिलिटीज को ऐड किया है और जितनी पॉसिबिलिटीज थे उससे डिवाइड कर दिया है. That's the average running time. I'm calling this as average running time. Yes सर sir. ये 1 डिवाइडेड बाय n कैसे आया? नहीं, मैंने सबको ऐड करके ना, वो जो टोटल सम था डिवाइडेड बाय n लिखना था ना, टोटल सम डिवाइडेड बाय n, तो उसको मैंने बाय लिख दिया 1/n. ओके. Yes? जी सर. ठीक है. You can write here, just to stay abstract, you can write here n t of 1 is always constant 1. Yes? जी सर. अगर आप गौर से देखें इसमें, इस पूरे सम में t of 0 में ऐड होगा, ये सारे ऐड होने हैं ना आपस में, किसी भी तरह से आप ऐड कर सकते हैं. t of 0 में ऐड होगा, t of 1 में ऐड होगा, t of 2 में ऐड होगा, इसी तरह tn-1 जो है वो tn-1 में ऐड होगा. तो आप देखें इस पूरे यानी इस पूरे सम को मैं लिख सकता हूं 1/n. I varies from 0 to 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी, ये गेस्ट टाइम है मेरे, जस्ट कंटिन्यू.
जी मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Okay. So this is n minus 1 and this is equal to 2 times t of I plus c2n. Is that okay? Every ti appears twice. अगर मैं पूरे सम को खोल के लिखूं, यानी इसको मैं इस तरह से लिखूं, अगर आप मुझे इस पूरे सम को, ये जो सम है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, t of 0 plus t of n minus 1 plus c2n plus t of 1 plus t of n minus 1 n minus 2 plus c2n plus t of n minus 2 plus t of 1 plus c2n plus t of n minus 1 plus t of 0 plus c2n. So अगर मैं इस तरह से देखूं इस सारे समेशन को, तो आप देखेंगे ये सारे नंबर आपस में ऐड ही हो रहे हैं ना। इनको मैं सेपरेट ऐड कर लेता हूं सारे के सारों को। अगर मैं इनको ऐड करूं, ये जो नंबर्स हैं, तो t0 plus t0 2 times t0, t1 plus t1 2 times t1. So every t of something appears twice. Yes? जी sir. So this is the recurrence. बट सर अब इसमें t of n minus I minus 1 कहाँ गया फिर, अगर आपने 2 t of I लिख दिए? इसका कोई ना कोई पेयर था ना, ये उसके साथ पेयर हो गया, टू टाइम्स दैट हो गया। यानी मिसाल के तौर पे t of n minus 7, तो एक और भी t of n minus 7 था, ये उसके साथ पेयर हो गया। और n minus 7 जो है, ये i की कोई ना कोई वैल्यू तो है ना, 0 से लेके n minus 1 तक। यस? जी सर। ओके, मैंने आपको पिक्चर थोड़ी सी क्लियर कर दी। मैंने एक अरसा पहले ना क्विक सॉर्ट का एनालिसिस लिखा था खुद से भाग के, एक दो बुक से मैंने सर्च करके और कुछ उसको सीधा वगैरह करके लिखा था। तो लेट मी शेयर दैट विद यू एंड वी ट्राई टू सॉल्व दिस। क्योंकि क्विक सॉर्ट का एनालिसिस जहां पे एक दो जगह पे मैंने देखा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि वो, यानी वो फर्क तरीकों से किया हुआ है। ये जिस तरह से ये इस डॉक्यूमेंट में मैंने किया हुआ है, मुमकिन है ये किसी को इससे आसान तरीका मिल जाए, या लेकिन आई गेस I personally think this is more intuitive and understandable. So ये मैं डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब हम इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर रहे हैं। अगर आपको ये नजर आ रहा है, आप इतना हिस्सा पढ़ लें एंड देन वी विल मूव ऑन। चलें आगे। जी सर। ये इतना हिस्सा भी पढ़ लें, इतना हमने बोर्ड पे कर लिया होगा। ये नोट भी पढ़ लें। चलें आगे। जी सर। यहां से जो यहां ट्रांजिशन हुई है, मुझे भी बताएगा कैसे हुई है, यहां से यहां। और बाय द वे थीटा एन को हमने सी एन से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे थीटा एन था, नोट्स में मैंने जो अभी मैंने स्लाइडें आपको दिखा रहा था, वहां पे मैंने C2n लिखा था। So how can we move from here to here? Anybody? What happens? सर क्योंकि हमने अंदर वो t of I plus tn minus I minus 1 को रिप्लेस कर दिए 2 t of I से, तो जो इसका 2
कांस्टेंट था उन्होंने वो बाहर ले आए हैं और 2/n कर दिया और जो ऊपर वाली इक्वेशन में 1/n है उसको सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दिया है इसके साथ भी c(n) के साथ भी। बेसिकली 1/n को इन्होंने दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया 2t(i) एंड θ(n) के साथ। θ(n) हमने पता है कि c(n) है। सो जो 2 था t(i) के साथ वाला वो 1/n से मल्टीप्लाई हो गया, सो ये बन गया 2(n) t(i) and 1/n summation c(n). ये पता नहीं क्या हो गया यार, ये मैं छेड़ रहा था कुछ पहले। Okay, so yeah, so basically this summation distributes over this sum. So summation of this first term and then summation of this second term. फर्स्ट टर्म में अगर समीशन में ये जो 2 है ये स्केलर है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ सकता है, एटलीस्ट ये i पे डिपेंडेंट नहीं है, ये बाहर आ सकता है। सो दैट्स 2/n दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। और 1/n जो है वो पहले फैक्टर के साथ भी था, दूसरे फैक्टर के साथ भी है। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now can you tell me how can we go from this to this? Sir, जो Sir, C2 है ना, 1/n सर ये जो समीशन है ना 1/n समीशन c(n) ये बेसिकली कांस्टेंट है, सो इसीलिए हमने उसको c(n) लिख दिया। यानी θ(n) है तो हमने उसको θ(n) की फॉर्म में लिख दिया, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो इट डजंट मैटर। नहीं, ऐसा नहीं। सर थीटा ऑफ एन को जितनी दफा भी उसमें प्लस करें थीटा ऑफ एन वो थीटा ऑफ एन ही रहता है। नहीं, थीटा ऑफ n नहीं रहता। So if I have for example theta n plus theta n is equal to plus theta n, then this is equal to theta n. But if I have, for example, theta n plus theta n plus theta n, and the total number of terms are not constant, these are n terms, let's say I'm adding this theta n times, then the result is theta n square. And if I'm adding these theta n's, for example, log n times, then the result is theta n log n. So how many times you are adding theta, it changes theta. When it doesn't change, that scenario is कि जब आप थीटा n को कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स ऐड कर रहे हो, 5 दफा 10 दफा ऐड किया, 5 करोड़ दफा ऐड किया, as long as it does not depend upon the input size. Make sense? जी सर। So if you add theta n so many times, as long as this so many is not a constant, the result is different. Okay, so now going back to this, what is this thing? If you can see here, any idea? सर एक एन जो है वो 1/n से कैंसिल हो गया। n को बाहर ला सकते हैं समेशन से? सर वो थीटा एन स्क्वायर बन जाएगा ना, मतलब सी एन स्क्वायर 1/n, फिर वो डिवाइड हो जाएगा। यस, आप सही कह रही हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ना इस तरह से भी, यानी यस यू आर राइट, if I'm adding theta n times,
that becomes theta n square. And if I divide theta n square with n, that becomes theta n. And theta n eventually is some constant time n. That's one way of seeing this, which is correct. Another way of seeing this is 1 over n summation I varies from 0 to n minus 1 Cn. Both C and n both do not depend, none of them depends upon I. So I पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब है कि I के लिहाज से ये दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल जो है वो I है 1 over n, so ये दोनों ही बाहर आ सकते हैं Cn summation I varies from 0 to n minus 1। अब यहाँ पे क्या बचा 1? Yes? जी सर। जी। So now this n can be cancelled out with this n and you get C times, अगर मैं 1 को n टाइम्स ऐड करूं, यानी लूप 0 से शुरू हो n minus 1 तक जाए तो टोटल n इटरेशंस होंगी। तो अगर मैं 1 को ऐड करता जाऊं n टाइम्स, it will become n. So the result again is Cn. Both ways the result is Cn. Yes? जी सर। Okay, so far so good I guess. और ये जो टर्म है ये मैं as it is ऐसे यहाँ पे ये ऐसे सर आपकी आवाज कट रही है। ऐसे लिखिएगा। Okay, step to this step. मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज कट के आ रही है, आपने जो बताया वो समझ नहीं आया। मेरी आवाज आप सुन सकते हैं स्टूडेंट्स? क्या आप मेरी आवाज आ रही है क्लियर आपको? यस सर। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनको आवाज क्लियर नहीं आ रही। इज दैट ट्रू फॉर मेनी स्टूडेंट्स और आई मीन? सर थोड़ी देर के लिए नहीं आई थी, अब आ रही है। अब आ रही है, ठीक है। सो गोइंग बैक, सो मेरा सवाल ये था कि यहां से यहां कैसे आए? हाउ? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। सर क्योंकि आपने टी ऑफ एन वाली जो टर्म है उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो सी ऑफ एन है वो सी एन स्क्वायर बन गया, और जो 2 ओवर एन था एन एन से कैंसिल हो गया, तो इसलिए ये वाली टर्म हमारे पास आ गई। ठीक है। सो बेसिकली मैंने एक इक्वेशन के दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दिया। एक इक्वेशन है ना, उसकी एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी n से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी राइट हैंड साइड पे भी n से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज द रिजल्ट। इसमें अगर किसी को डाउट नहीं है तो आई एम मूविंग ऑन। यस? यस सर। Now, this is a tricky step. This is a difficult step जो हम अभी करने जा रहे हैं। How can I move from this to this? सर आपने n को रिप्लेस कर दिए n-1 के साथ। And I can do that because अगर मेरे पास कोई भी रिकरेंस हो, उसको अगर मैंने n पे इवैल्यूएट करना है तो मैं इवैल्यूएट कर सकता हूँ। अगर मैं n-1 पे इवैल्यूएट करना चाहूँ मैं n-1 पे इवैल्यूएट कर सकता हूँ। याद है आपको, हम रिकरियंट ट्री में भी ऐसे करते थे, और जब हम उसको हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करते थे तब भी हम ऐसे करते रहे हैं। सो वी कैन हैव, इफ वी हैव अ रिकरेंस वी कैन इवैल्यूएट दैट ऑन एनी पॉइंट। यस? जी सर। जी सर। तो अगर मैं इसको n-1 पे इवैल्यूएट करूं तो जहां जहां n था वहां पे n-1 आ जाएगा। और ये भी नोटिस करें कि ये टॉप पे पहले n-1 था, अब n-2 आ चुका होगा, क्योंकि n की जगह पे n-1 आया। So the total result becomes n-2. Yes? जी सर।
अच्छा, अब अगर मैं, आप जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं इक्वेशन 3 को, ये इक्वेशन 3 है, इसको अगर मैं इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, व्हाट विल बी द रिजल्ट? यानी लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर दूं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर दूं, व्हाट विल बी द रिजल्ट? सब्ट्रैक्ट करें left hand side from the left hand side, right hand side from the right hand side, and tell me what's the result. Should I show you the result or will you tell me? आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? यस? यस सर। जी सर। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं आपको रिजल्ट दिखा दूं? डू यू वांट 1 or 2 more minutes or? ये नीचे रिजल्ट लिखा हुआ है, this is the result if I subtract equation 3, which is this equation, from equation 2. Left hand side from the left hand side, right hand side from the right hand side. Everything is understandable except this summation is gone. Why? Why this summation is gone? सर वो कैंसिल हो गया, उसका साइन चेंज हो गया था ना, माइनस। ये एक क्यों बच गई, ये वाली, ये क्यों बच गई? ये कहां से आ गया? सारी कैंसिल हो जानी चाहिए, ये तो पूरी से कट जानी चाहिए ना। ये कहां से टर्म आ गई ये वाली? थोड़ा सा आपको, हाँ जी, अब देखें जरा। सर बिकॉज जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, उसका समीशन n-1 तक चलेगा, और जो इक्वेशन नंबर 3 है उसका समीशन n-2 तक चलेगा। तो जो n-1 टर्म्स होंगी वो ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएंगी, और जो एक टर्म एक्स्ट्रा बचेगी वो ये वाली है, 2t into n-1। एग्जैक्टली, अगर आप इक्वेशन 2 को देखें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो एक ज्यादा है इसकी टर्म से ना। इसकी टर्म्स जो n-2 तक जाके रुक जाती हैं, इसकी टर्म n-1 तक जाती हैं। इसमें जो एक ज्यादा टर्म है वो बच जाएगी, बाकी सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, और वो जो एक बचने वाली टर्म है वो ये है। इज दैट फाइन? यस सर। Okay, great. Next is this. Can you tell me how we get this thing from here to here? Do something on your notebook and tell me. Just go step by step. How can we move from here to here? जी, कोई एक्सप्लेन करेगा? Anyone? सर इसकी समझ नहीं आई। Okay, let's try. पहले तो इस टर्म को देखते हैं because this is easy. अगर मैं cn स्क्वायर को देखूं और c into n-1 स्क्वायर को देखूं, so that result would be so basically I have the following things: t n, I guess, minus n-1, t of n-1
is equal to Cn square minus C n minus 1 square plus 2. That's the equation. If you see closely, first of all, let's focus on this block. Let's focus on this block. That becomes Cn square minus C n square plus 1 minus 2n. Yes? जी सर. जी सर. And that becomes Cn square minus Cn square minus 1 plus 2Cn. So these two cancel out and I get 2Cn, sorry this is C, 2Cn minus C, this thing. तो इस ये जो ब्लू सा मैंने एरिया हाईलाइट किया है इसकी जगह पे तो ये आ जाएगा. यस? जी सर. अब मैं इसको पर्पल से हाईलाइट करता हूँ. इससे इस एरिया यानी ये माइनस बी सी के अंदर आ रहा है, इसको और इसको. अब जरा गौर से देखिए, अगर मैं इसको उठा के इक्वेशन के इस तरफ ले आऊं तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2 times t of n minus 1 plus n minus 1 times t of n minus 1. Yes? जी सर. जी सर. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास लिखा हो 2x plus n minus 1x, तो आप उसको लिख देंगे n plus 1x. ऐसे ही है अगर मैं x को कॉमन ले लूं. जी सर. So that means this becomes n plus 1 t of n minus 1. Yes? Yes? जी सर. So now the final equation is n Tn is equal to n plus 1 t of n minus 1 plus 2Cn minus C. Make sense? So this is yes, no. जी सर. Okay. Now, can you tell me how I move from this equation to this one? What have I done? सर आपने जो इक्वेशन नंबर 4 है ना उसको डिवाइड किया है n over n plus 1 से. नहीं, ये इक्वेशन है. ये इक्वेशन नंबर 4 नहीं है बाय द वे. ये कोई इक्वेशन है ये जिसके ऊपर मेरा इस वक्त कर्सर घूम रहा है. इसको आप इक्वेशन नंबर 3.1 कह लें. चलो ये इक्वेशन है. इस पे मैंने क्या किया? सर आपने इसको डिवाइड किए n into n plus 1 के साथ. एग्जैक्टली. मैंने लेफ्ट साइड पे भी n into n plus 1 से डिवाइड कर दिया और राइट साइड पे भी n into n plus 1 पे डिवाइड कर दिया. जब मैंने लेफ्ट साइड से डिवाइड किया तो n से कैंसिल हो गया, लीविंग n plus 1. यहाँ पे n plus 1 कैंसिल आउट हो गया, लीविंग n. यहाँ पे n कैंसिल आउट हो गया, लीविंग n plus 1. और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सो इट लेफ्ट एज n into n plus 1. मेक सेंस? जी सर. अब एग्जैक्टली ये एक इक्वेशन है. अगर इसी पूरी इक्वेशन को मैं n minus 1 पे इवैल्यूएट करूं, यानी n की जगह n plus 1 रिप्लेस कर दूं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी t of n minus 1 over n is equal to, जहां जहां n है वहां पे n minus 1 आ जाएगा. यस? जी सर. अच्छा, अब जरा गौर से देखें. यहाँ पे t of n minus 1 over n की वैल्यू मुझे अवेलेबल होगी है जो राइट साइड पे ये. अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू मैं यहाँ पे प्लग इन कर दूं तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी. इज दैट ट्रू?
यहाँ पे सिर्फ मैंने टी ऑफ एन माइनस वन ओवर एन इसकी ये जो वैल्यू निकाली है ये प्लग इन की है बैक, ये पहली तीन टर्म्स, ये टी ऑफ एन माइनस वन ओवर एन है, जो बाकी लास्ट दो टर्म्स थी वो तो पहले से ही मौजूद थी। इज दैट करेक्ट? यस सर। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अपनी ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 4 को n माइनस टू पे इवेल्युएट करेंगे, n माइनस टू पे, यानी ये जो अपनी वेरिएटी 4n-1 की है, जी 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 बेटे बताएं मुझे इसमें सवाल। ये जो लास्ट टर्म है सी, सर ये जो आपने किया ना इक्वेशन पे इवैल्यूएट, इसमें जो लास्ट टर्म है c डिवाइडेड बाय n इनटू n माइनस 1, इसमें जब n की जगह n माइनस 1 प्लेस होगा तो ये n माइनस 2 नहीं हो जाएगा? n की जगह पे जब या n माइनस वन बल्कि लगेगा, n रहेगा? ये वाला जो पहले वाला n है ये n माइनस वन बन जाएगा, जो अगला वाला n है वो n प्लस वन है वो n बन जाएगा, ये n माइनस वन बन जाएगा, ये n बन जाएगा। सो आपके पास n इंटू n माइनस वन ही रहेगा, नहीं? अगर कंफ्यूजन है तो मैं बता देता ठीक है, हूँ बोर्ड पे। नहीं सर आ गया समझ। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन इसमें है? नो सर। ओके, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसको हमने पहले n माइनस वन पे इवेल्युएट किया तो n माइनस वन वाले की वैल्यू लगा दी, अब हमारे पास ये वैल्यू, इसको रिप्लेस करने के लिए ये बिल्कुल स्टार्ट पे चले जाएं, अगर आप एल्गोरिथम एनालिसिस के स्टार्ट में हमने रिकरेंसेस को सॉल्व करने का तरीका देखा था, अब इसको एलिमिनेट करना है तो n माइनस टू पे इवेल्युएट करें, इसकी वैल्यू आएगी वो प्लग इन करें, करते चले जाएं, जब आप k इटरेशन कर लेंगे यू विल एंड अप हैविंग दिस सिचुएशन। इसकी ना जरा एक आइट्रेशन अपनी नोटबुक पे करके एक और आइट्रेशन करके देखें और देखें ये पैटर्न बनता है नहीं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जरा करके देखें, इट मे टेक 5 मिनट्स। ओके, सो आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं माइक वैसे बंद कर रहा हूँ फिलहाल, कैमरा भी, आई एम गिविंग यू लेट्स से 2 और 3 मिनट्स, कम अप विद सर 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 रिप्लेस कौन सी वैल्यू को करना है? t ऑफ n माइनस टू डिवाइडेड बाय n माइनस वन, इसकी जगह पे कोई वैल्यू लगानी है ना, वो वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से आएगी। ठीक है, जैसे स्टार्ट में हम सब्स्टिट्यूशन करते थे, एक रिकरेंस को एलिमिनेट करने के लिए दूसरी आ जाती थी, फिर उसकी वैल्यू निकाल के लगाते थे, फिर एक जनरल पैटर्न बनता था इक्वेशन ट्री से पहले जो हम करते थे। यस, जी सर। ओके, यू हैव लेट्स से 5 मिनट्स, या 5 मिनट्स, आई एम लिसनिंग बट नॉट स्पीकिंग। अगर आपको बीच में सवाल हो तो आप पूछ लें, आई एम टर्निंग ऑफ माई माइक।
जी किसी नतीजे पे पहुंचे हैं या नहीं? वैसे भी 2 मिनट हैं आपके पास मजीद। जी सर कर रहे हैं। जी is that okay or are you stuck or what? जी चलें आगे। Or should I spend some time driving this? I mean, maybe I should substitute this value a couple of more times and I get some pattern. Or if you just understood that this indeed is a pattern, then we should move on from here. सर एक रिकॉर्डिंग आप भी करके दिखा दें, हम स्टक हो गए हैं। Okay. So we have, for example, T of n over n plus 1 that is equal to T of n minus 1 over n. Um, 2c this is our main equation, or you can call it equation 4. And right now
we are here. Right now we are here. T of n over n plus 1 is equal to T of n minus 2 over n minus 1 plus 2c over n minus c over minus c over n into n minus 1 plus 2c minus c over n into n plus 1. So ये जो लास्ट मैंने दो टर्म्स लिखी हैं ये तो एग्जैक्टली यही हैं, ये यहाँ से आ गई, ये वाली टर्म यहाँ से आ गई, और ये जो है ये इसकी वैल्यू है. यस जी सर. जी सर. ओके. अब होगा ये, इसके बाद मैं डिफरेंट कलर में लिख देता हूँ कि टी ऑफ n over n plus 1 will be equal to something and let me figure out that something. लेकिन इस something के बाद ये वाली terms as it is आएंगी, 2c over n minus c over n into n minus 1 plus 2c over n plus 1 minus c over n into n plus 1. Make sense? जी सर. अब ये इस बॉक्स में क्या आएगा, लेट्स फिगर आउट. अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को n over 2 पे इवैल्यूएट करूं, यानी n की जगह पे n minus 2 लगा दूं, व्हाट विल हैपन? सो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो क्या बनेगा? What will happen on the left hand side? It will become, यानी ये जो चीज है, it will become t of n minus 2 over n minus 1. Agreed? जी सर. इसके राइट साइड पे जो भी बनेगा वो इसकी वैल्यू है. So I'm going to write that value. T of n minus 3 over n minus 2 और उसके बाद होगा जी 2c, n की जगह मैं n minus 2 लगाऊंगा तो दिस विल बिकम n minus 1 minus c n minus 2 into n minus 1. Agreed? जी सर. ओके. यहाँ से अगर हम थोड़ा सा, और ये हमने 2 दफा सब्स्टिट्यूशन कर लिए, यानी 2 दफा हमने वैल्यू प्लग इन कर दी है. a की वैल्यू इस वक्त 2 है, 2 दफा हमने वैल्यू प्लग इन कर दी. सही है जी? यस सर आप n को रिप्लेस कर रहे हैं n minus 2 से ना, जी. तो सर ये जो 2c over n है या 2c over n minus 2 नहीं आना चाहिए, ये जो हमने ग्रीन बॉक्स में लिखा है सर, ये जो ग्रीन बॉक्स में लिखा. जी बेटे मैंने इक्वेशन नंबर 4 को देखना है, उसको पकड़ना है मैंने. मेरी मेन इक्वेशन वो है, उसमें जहां जहां पे n था वहां पे मैंने n minus 2 लगाना है. ओके सर. वहां से वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू मैं इसमें प्लग इन करूंगा यहाँ पे. जी सर समझ गई. वैल्यू निकालने के लिए मैं इक्वेशन 4 में जाऊंगा. ओके. सो व्हाट दिस बिकम्स इज द फॉलोइंग, यानी अगर ये मैं बॉक्स हटा दूं, then things should make sense. Yes? यस सर. अब आप जरा गौर से देखिएगा 2c वाली टर्म्स को. एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म ये है. इनका पैटर्न देखें किस तरह का बन रहा है. अगर आप गौर से देखें तो ये पैटर्न कुछ इस तरह का बन रहा है. 2c है ओवर एक वैल्यू है i, ठीक है, और आप जरा गौर से देखें i की वैल्यू एक एक करके बढ़ रही है.
आई की वैल्यू शुरू कहां से हो रही है? आई स्टार्ट हो रहा है n माइनस, इस वक्त k की वैल्यू 2 है, हमने 2 दफा वो कर चुके हुए हैं। आई यहां से शुरू हो रहा है और आई कहां तक जा रहा है? आई जा रहा है n, यानी कि हम so I starts from this value which is n minus 1, then whatever the value of I is, जहां से वो शुरू हो रहा है उसमें प्लस कर लें आप माइनस के प्लस 1, यहाँ से शुरू हो रहा था इसमें k प्लस कर लें, इसमें 1 प्लस 2, यानी इसमें आप k प्लस कर लें प्लस k, सो दैट वुड बी, अगर मैं प्लस k करूंगा तो I guess I will get this thing out, so this will go to n plus 1. Make sense? जी सर। एक पैटर्न तो ये है। दूसरा पैटर्न अगर आप और से देखें तो वो पैटर्न ये बन रहा है c over something, c over something, c over something। इसमें ये सारे माइनस वाले हैं। ये पहली बात तो ये है कि c ओवर एक वैल्यू है जो छोटी है और उसके साथ ही एक वैल्यू है जो उससे एक एलिमेंट बड़ी है। अब ये जरूरी नहीं है छोटी वैल्यू लेफ्ट पे लिखी हुई है बड़ी राइट पे लिखी हुई है, जो भी है यही पैटर्न, यही है। दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों में डिफरेंस 1 का है। यस जी सर। ओके, सो यहाँ पे ये जो j है ये बेसिकली स्टार्ट हो रहा है n माइनस के n माइनस के से आई गेस ये शुरू हो रहा है। n जो है ये 2 है, सो 2 प्लस 1, फिर हाँ ये n माइनस के से इट सीम्स लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम n माइनस के and j is going towards finally j goes to n. Yes? जी सर। ठीक है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है t of n minus k minus 1 over n minus k. Yes? जी सर। Okay, so this is kind of the pattern. Maybe मैंने कोई indices में गलती कर दी हो, so let's confirm these from here. N minus k plus 2, n minus k plus 1 से हो गई। और यहाँ पे n माइनस के है और यहाँ पे n माइनस के प्लस 1 है। और यहाँ पे मैंने k को 3 अज्यूम किया होगा, k जो है उसको मैंने 3 अज्यूम कर लिया होगा। यहाँ पे डिपेंड्स कि आपने k जो है उसको 3 अज्यूम किया हुआ है, आई मीन 2 आइट्रेशंस हो गई हुई हैं या 3 आइट्रेशंस हो गई हुई हैं एंड सो ऑन। तो ये इसमें 1 प्लस 1 का फर्क है सिर्फ, ये वाली जो है, यानी इसको आप थर्ड आइट्रेशन समझ रहे हैं या इसको आप 2 सब्स्टिट्यूशन के बाद एक रिजल्ट समझ रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? मेरी बात समझ रहे हैं? यानी ये जो नोट्स हैं इसमें मैंने k को 3 समझा हुआ है ना, दिस k indeed becomes this 3। ये थर्ड आइट्रेशन, ये whatever the subtraction is happening from n, that is my k।
अगर k की वैल्यू 3 हो तो ये जो वैल्यू होगी ये 3 माइनस 1 होगी, सही है, यानी अगर मैं माइनस में लिखूं एंड ऑल दीज वैल्यू, अगर k की वैल्यू 2 हो तो एवरी दिस वर्क्स फाइन, दिस इज एग्जैक्टली ओके। यस, जी सर। so this is the general pattern। अब इस जनरल पैटर्न को गौर से देखें, मैं k की क्या वैल्यू लूं, k की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि मैं बेस केस तक पहुंच जाऊं, मुझे t ऑफ 1 चाहिए। तो आप मुझे बताएं k की क्या वैल्यू होगी, ये ऊपर बन जाए t ऑफ 1 ताकि मैं रिकरेंस से जान छूट जाए। What should be the value of k here to make t of 1? n minus 1. n minus 1. So the value of k should be n minus 1. अगर मैं यहाँ पे n minus 1 लगाऊं, this will become t of 1. और k की जगह यहाँ मैं n minus 1 लगाऊं तो I will get 2 here. अगर मैं k की जगह पे n minus 1 यहाँ पे लगाऊं, so I will get I is equal to 3 to n plus 1. अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे लगाऊं तो j becomes 2 to n. Is that okay? जी सर। जी सर। ये जो पहली सीरीज है, इस अब इसको देखें, ये तो कांस्टेंट हो गया पूरा, ये तो कांस्टेंट है ना। यस सर। अब ये दो सीरीज रहेगी मेरे पास, ये जो पहली सीरीज है ये हार्मोनिक सीरीज है। यस यस सर। और इसकी रफली n टर्म्स हैं, एग्जैक्टली अगर देखें तो इसकी मेरा ख्याल है n-2 टर्म्स है, लेकिन रफली n टर्म्स है। तो हार्मोनिक सीरीज की बाउंड क्या होती है, आपको पता है क्या होती है हार्मोनिक सीरीज की बाउंड? जी सर log of number of terms. log of number of terms। so ये पहला जो समीशन है that is log of number of terms which are roughly n। so ये तो ये होगी। अब दूसरी पे आए, ये 1 over j into j plus 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 over j minus 1 over j plus 1। ये जरा गौर से देखिए, this right hand side exactly equal to the left hand side। so इसको मैं तोड़ के इस तरह लिख सकता हूँ। yes जी सर। अच्छा, अब जरा ये देखिएगा, तो मेरे पास अगर इस तरह की सीरीज हो, मेरे पास अगर इस तरह की सीरीज हो, j varies from let's say 2 to n, 1 over j minus 1 over j plus 1, ये सीरीज हो, ये सीरीज की जरा टर्म्स लिखता हूँ। पहली टर्म लिखता हूँ 1 over 2 minus 1 over 3। अगली टर्म में लिखता हूँ, अगली टर्म होगी 1 over 3 plus 1 over minus 1 over 4। इससे अगली टर्म होगी 1 over 4 minus 1 over 5। और आखिरी टर्म होगी 1 over n minus 1 over n plus 1। सही है? यस? जी सर। ये 1 over 3 इस 1 over 3 से कैंसिल होगा, ये 1 over 4 इस 1 over 4 से कैंसिल होगा, ये 1 over 5 आगे से कैंसिल एंड सो ऑन। यहाँ से पहली टर्म बचेगी और यहाँ से ये आखिरी टर्म बचेगी, and eventually this whole thing boils down to 1 over 2 minus 1 over n plus 1। yes? yes? जी सर। ये इस तरह की सीरीज को कहते हैं जी टेलीस्कोपिक सर। सीरीज, टेलीस्कोपिक सीरीज कहते हैं। अच्छा, ये कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी ओवरऑल एक कांस्टेंट होगा फाइनली, एक नेगेटिव पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, ये नेगेटिव, ये बेसिकली पॉजिटिव कांस्टेंट होगा इफ n is large। so log n minus constant plus constant, eventually that whole thing becomes log n। yes? because if you are subtracting a constant, if you are Yes. adding a constant, asymptotically it doesn't matter। yes? जी सर। And now if I multiply both sides with n plus 1, I get my bound n log n। If I multiply on the left hand side, if I multiply n plus 1, if I multiply n plus 1 on the right hand side,
So I will get T of n is equal to n log n. Asymptotically. Yes? जी सर। सर n+1 मल्टीप्लाई करने से n log n। हाँ जी, वो उसकी वजह ये है कि आपके पास log n है, log ऑफ log n, और इसके साथ आप n+1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं log ऑफ log n को फिलहाल लिख रहा हूँ सम कांस्टेंट टाइम log n into n+1, which will become some constant time n log n plus some constant times log n. तो इसमें ना ये छोटी टर्म है, this is ignorable. This is constant, this is constant. So we get eventually n log n. Okay? ओके सर। So ये एनालिसिस था क्विक सॉर्ट का। मुश्किल है, आसान नहीं है। इसको और तरीकों से किताबों में मुख्तलिफ तरीकों से लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट मैंने लिखा था कुछ अर्सा पहले, ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ ना ये डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ, अभी ये ईमेल भी कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो एक चीज़ वाज़ेह हो रही है ना, वो ये कि क्विक सॉर्ट वर्स्ट केस में n स्क्वायर में जा सकती है, बेस्ट केस में वो n log n पे रहेगी जब वो पार्टीशनिंग बड़ी बैलेंस्ड होगी, और ऑन एवरेज इट रन्स ऑन n log n. मेक सेंस? जी सर। तो अब सवाल ये है कि क्विक सॉर्ट जो है वो वर्स्ट केस में n स्क्वायर पे जा सकती है, एवरेज केस में n log n पे रहती है, और बेस्ट केस में भी n log n पे रहती है। तो ये क्विक क्यों है? हालांकि मर्ज सॉर्ट को अगर आप देखें तो उसका वर्स्ट केस रनिंग टाइम n log n है, वो n log n से ऊपर कभी जाती नहीं, उसको क्विक क्यों नहीं कहते? ये इसके क्विक होने की क्या वजह है? यानी इसको क्विक कहना समझ में नहीं आता। समझ आ रही बात की? जी सर। तो मैं पहले अर्ज करता हूँ ये क्विक किस सेंस में है। पहला तो ये कि ये क्विक है एवरेज केस के सेंस में, यानी ऑन एवरेज इसका जो एवरेज रनिंग टाइम ऑफ n log n है, ये इस हवाले से क्विक नहीं है कि आप ये गारंटी कर बैठे हैं, किसी के साथ आप ये शर्त नहीं लगा सकते कि मैं क्विक सॉर्ट चलाता हूँ एक अरे के ऊपर और तुम मर्ज सॉर्ट लगाओ एक अरे के ऊपर और वो अरे का साइज बहुत ज्यादा हो, तो आप किसी के साथ ये शर्त नहीं लगा सकते कि जो एक्चुअल रनिंग टाइम है वो क्विक सॉर्ट का बेहतर आएगा मर्ज सॉर्ट से। क्लियर? ये शर्त नहीं लगा सकते। हाँ, अगर आपके पास एक अरे या कोई 1,00,000 अरेज हैं या आपने मुख्तलिफ अरेज हैं और आप उन सब पे क्विक सॉर्ट भी लगाएं और हर एक का रनिंग टाइम नोट करते जाएं और सब पे मर्ज सॉर्ट भी लगाएं और एक उनका रनिंग टाइम भी नोट करते जाएं, तो जो टोटल रनिंग टाइम होगा सारी क्विक सॉर्ट्स का वो कम होगा सारी मर्ज सॉर्ट से, क्योंकि ऑन एवरेज n log n में चलती है। अब सवाल ये है, ये ऑन एवरेज n log n में चल रही है, वर्स्ट केस में भी और ज्यादा बुरी चल सकती है, मर्ज सॉर्ट जो है वो वर्स्ट केस में n log n पे चल रही है, तो इसका टाइम कम क्यों होगा? इसकी वजह ये है कि जब दो एल्गोरिदम हो ना, जब आपके पास दो एल्गोरिदम्स हों, यार ये मेरी कॉल आ रही है, लेट मी अटेंड दिस कॉल। जी तो मैं ऐसे ही कर रहा था कि अगर हमारे पास दो एल्गोरिदम्स हों, एल्गोरिदम 1 है C1 n log n और एल्गोरिदम 2 है C2 n log n, तो असिम्प्टोटिकली तो ये दोनों एल्गोरिदम्स जो है ना, असिम्प्टोटिकली both the algorithms they are asymptotically I mean same,
लेकिन प्रैक्टिकली जिसका कांस्टेंट छोटा होगा, प्रैक्टिकली दैट इज फास्टर ऑन अ मशीन। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी अगर एक ही मशीन पे ये दोनों एल्गोरिथम्स चलाए गए हैं तो जिसका कांस्टेंट छोटा होगा उसका प्रैक्टिकली रनिंग टाइम थोड़ा होगा। इज दैट ओके? जी सर। क्विक सॉर्ट में मैंने आपको एल्गोरिथम भी लास्ट टाइम मैंने आपको कोड लिख के दिखाया था। क्विक सॉर्ट में एक पार्टीशन का कोड कॉल होता है जिसका कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, एक दफा लूप चलना है और उसने स्वैप कर देना है। उसके बाद दो रिकर्सिव कॉल्स हैं, यानी जो एक्स्ट्रा वर्क है रिकर्सिव कॉल्स के अलावा, जो एक्स्ट्रा वर्क है दैट इज सो स्मॉल कि इसका ये जो n log n के साथ कांस्टेंट आता है, दिस इज सो स्मॉल as compared to other sorting algorithms that practically it is quick. Its constant is small. It is not asymptotically quick. It is practically quick. Clear है जी? जी सर। ठीक है। तो ये क्विक सॉर्ट थी और ये इसकी वजह थी कि इसको क्विक क्यों कहते हैं। अब मैं एक और क्विक सॉर्ट का एक वेरिएंट है, उसको कहते हैं डिटरमिनिस्टिक क्विक सॉर्ट। डिटरमिनिस्टिक क्विक सॉर्ट ये है कि आप जो पिवट निकालते हैं ना वो kth लार्जेस्ट से निकालें। kth लार्जेस्ट एल्गोरिथम हमने पढ़ा था ना? जी सर। तो आप kth लार्जेस्ट निकालें या kth स्मॉलेस्ट निकालें अरे का, और k की वैल्यू रखते हैं n/2, तो ये वो वैल्यू निकलेगी कि हाफ वैल्यूज इससे छोटी होंगी, हाफ वैल्यूज इससे बड़ी होंगी। इसको आप अपना पिवट अज्यूम करें, ठीक है? मेक जी सेंस? सर। जी सर। इसके बाद आप पार्टीशन करें इस पिवट को यूज करते हुए, तो गारंटीड पार्टीशनिंग होगी T(n/2) प्लस T(n/2) प्लस kth स्मॉलेस्ट का टोटल रनिंग टाइम θn, पार्टीशनिंग का टोटल रनिंग टाइम θn, so total running time again is θn, so that becomes theta n log n in the worst case। तो डिटरमिनिस्टिक क्विक सॉर्ट जो है उसको वर्स्ट केस में n log n पे लेके जाया जा सकता है, जिसमें पिवट की सिलेक्शन टेक्निक जो है दैट इज नॉट रैंडम, दैट इज वेरी इंटेलिजेंट। मेक सेंस? यस सर। और लेकिन अब ये क्विक नहीं रहती। जो इसकी क्विकनेस थी ना, वो क्विकनेस ये थी कि रिकर्सिव कॉल्स के अलावा बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा था कोड के अंदर। अब kth लार्जेस्ट के अंदर इतना ज्यादा काम हो रहा है कि असिम्प्टोटिकली तो ये n log n ही है, लेकिन प्रैक्टिकली द कांस्टेंट बिकम्स बिग। इसलिए धक्के से क्विक सॉर्ट को डिटरमिनिस्टिक बनाना और ये कहना कि अब तो ये वर्स्ट केस में n log n पे चलेगी, प्रैक्टिकली इट हैज नो वैल्यू। ठीक है जी? जी सर। जी चलें जी, ये आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। हमारे पास एक लेक्चर और है, उसके बाद आई गेस एग्जाम्स हैं। इज दैट ट्रू? यस सर। यस सर।